Okay, student, good morning to all of you. I hope you all are well at home. Today we will discuss about creating and displaying a data frame. Okay, let's first know what is a data frame. A data frame object can be created by passing data in a two-dimensional format. Okay, and before creating any data frame, ensure that to import these two data structure like import pandas as pd, import numpy as np. Okay, to create a data frame object you can use any syntax like data frame object equal to, or you can take any variable here, equal to pd dot data frame. Whenever you need to create a data frame, you will write pd dot data frame. D and F will be remains capital. Okay, and after that you can pass any nd array, any direct two dimension directory. You can pass any series type object or any other data frame object you can pass. Okay, so in this way, and also you have passed the column or the column sequence, index, etc. So with the help of these parameters we can easily create the data frame. Now let's try to understand this data frame with an example. As I told you, we can create our data frame by passing the two-dimensional dictionaries. Okay, dictionaries having list or dictionaries or nd array or series object, or we can pass two-dimensional nd array or numpy array. Okay, we can also pass series type object or another data frame object. So with the help of these values we can very easily create any data frame. So let's first create a data frame object from a 2D डिक्शनरी. इसमें हम 2D डिक्शनरी पास करेंगे, राइट, उसकी हेल्प से हम डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो लेट्स dict1 equal to, as you know, the 2D dictionary or any dictionary start with the curly brace. So you can see curly brace start students. Students is the key. और की के इसके अंदर हमने बहुत सारी वैल्यू पास कर दी. स्टूडेंट्स में आप कोई भी नाम ऐड कर सकते हैं अपनी क्लास के, रुचिका, नेहा, मार्क, वट एवर जो भी. उसके बाद आप देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करना, क्योंकि एक लिस्ट पास की है इसके अंदर, फिर कॉमा लगाना है आपको, फिर आपको दूसरी की लेनी है. सपोज मार्क्स 79.5, 83.74, वट एवर वैल्यू यू कैन टेक. After that, if you want to take another key, you again need to give a comma, then third key sport. Okay, cricket, badminton, football, athletics, कबड्डी, etc. जहाँ भी आपकी डिक्शनरी एंड हो जाती है आपको करली ब्रेस क्लोज करनी है, राइट. सो नेक्स्ट कमांड वी आर गोइंग की dict1 को जो है हम प्रिंट करा रहे हैं. तो यू कैन सी जो वैल्यू है आपकी मार्क्स, स्पोर्ट्स, स्टूडेंट, ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होके आएगी. जो भी कीज है आपकी उसके अंदर डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यू है वो अरेंज होके आएंगे. अगर हम इसको ऐसे प्रिंट करेंगे तो एज इट इज़ डाटा प्रिंट हो जाएगा. लाइक दैट वी वांट टू क्रिएट ए डाटा फ्रेम. सो एज यू नो, डाटा फ्रेम बनाने के लिए पहले हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई भी वेरिएबल चाहिए. सो DTF1, दिस इज द वेरिएबल नेम वेयर वी विल स्टोर द डाटा फ्रेम, इक्वल टू PD डॉट डाटा फ्रेम, D and F capital, and pass this variable dict1. Okay, you can see the result. जो आपकी कीज हैं मार्क्स, स्पोर्ट्स, स्टूडेंट, वो आपकी कॉलम बन जाएंगे, और वैल्यूज जो आपकी पास की गई हैं लिस्ट के अंदर, दे बिकम्स द रोज. यू कैन सी इजीली. फर्स्ट रो में देखिए आपको 0, 1, 2, 3, 4, दिस इज़ द इंडेक्सेस. बिकॉज हमने कोई इंडेक्स यहाँ पास नहीं किया था, सो इट विल कम्स ऑटोमेटिकली. इंडेक्सेस आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द सिस्टम. ओके, सो इन दिस वे वी कैन क्रिएट आवर data frame, right.
Now you can take another example. Suppose we want to provide the index ourselves, so we have to pass another parameter that is called index. So we are writing dtf2 equal to pd डॉट डाटा फ्रेम dict1 यानी कि जो डिक्शनरी 1 की वैल्यू है, कॉमा इंडेक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5. यू कैन सी, अब अगर हम इसको dtf2 को प्रिंट करेंगे, सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस एग्जाम्पल and this example. Here you can see 1 2 3 4 5 the index are changed. Okay, if you specify the index sequence, Python will take indexes from the index sequence, but the number of indexes given in the index sequence must match. अगर आपके पास 5 वैल्यूज हैं तो आपको इंडेक्स के अंदर 5 वैल्यूज़ ही देनी है. अगर आपकी 4 रोज हैं तो 4 वैल्यूज़ ही देनी है. मीन्स ये मिसमैच नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल. वन एग्जांपल इज गिवन कि गिवन ए डिक्शनरी दैट स्टोर्स द सेक्शन नेम्स लिस्ट एज वैल्यूज फॉर द सेक्शन key and the contribution amount list as values for the country key. कोई बात नहीं, द वैल्यूज आर गिवन, मतलब सेक्शन की वैल्यू दी हुई है और आपके कंट्रीब्यूशन की वैल्यू दी हुई है, राइट. सपोज डी इक्वल टू या d1 इक्वल टू, यू कैन टेक एनी वेरिएबल, dict1 इक्वल टू, you need to take another curly brace because we are using 2D dictionary. Okay, सो सेक्शन, दिस इज़ द की, कॉलन. आपको पता है की के बाद हम कॉलन लगाते हैं और कॉलन के बाद वैल्यू देते हैं. वो वैल्यू एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है. तो ये लिस्ट हमने प्रोवाइड कर दिया, पास कर दी यहाँ पे, कॉमा, फिर द कंट्री, दिस इज़ द सेकंड की, एंड 6700 5600 500 5200 और ये इसको वैल्यूज़ पास कर दी और यहाँ पे जो है डिक्शनरी को क्लोज कर दिया, राइट. तो अब सारी की सारी वैल्यू dict1 वेरिएबल के पास हैं. द क्वेश्चन इज राइट कोड टू क्रिएट एंड डिस्प्ले द डाटा फ्रेम यूजिंग अबाउट डिक्शनरी. इस डाटा को यूज़ करके आपको ये डिक्शनरी क्रिएट करनी है. तो एज यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इम्पोर्ट द pandas लाइब्रेरी. फॉर दिस यू विल गिव द कमांड import pandas as pd. dict1 equal to, write as it is, what I as given in the question, section country value. Okay, now df1, this is the data frame object. You can take any variable. df1 equal to pd dot data frame, again d and f capital, keep in mind. dict1 हमने इसको पास कर दिया और प्रिंट df1 करेंगे. इस प्रोग्राम को हम सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे. ओके, और दिस विल बी द आउटपुट. बिकॉज हमने यहाँ पर कोई भी इंडेक्स की वैल्यू पास नहीं की है, तो इंडेक्स अगर हम पास नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स जनरेटेड होगा 0 से स्टार्ट करके जितने भी वैल्यूज होंगी, राइट. नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल टू क्रिएट ए डिक्शनरी डाटा फ्रेम फ्रॉम द 2D डिक्शनरी हैविंग वैल्यूज एज ए डिक्शनरी ऑब्जेक्ट. यानी कि एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी. ओके, ए 2D डिक्शनरी कैन हैव वैल्यूज एज डिक्शनरी ऑब्जेक्ट टू. वी कैन ऑल्सो क्रिएट ए डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट यूजिंग सच 2D डिक्शनरी ऑब्जेक्ट. गिव ए 2D डिक्शनरी, सपोज इसका नाम है पीपल. पीपल इज द नेम ऑफ आवर डिक्शनरी. पीपल इक्वल टू सेल्स. सेल्स आपकी फर्स्ट की है. अब आप पहले एग्जाम्पल में देखिए, आपने वहाँ पर एक लिस्ट पास की थी. अब एक डिक्शनरी के अंदर हम दूसरी डिक्शनरी पास कर रहे हैं, राइट. तो नेम कॉलन रोहित, एज कॉलन 24 और जेंडर और सेक्स इक्वल टू मेल फीमेल वट एवर, राइट. सो इसमें होता क्या है, द की ऑफ इनर डिक्शनरी. इनर डिक्शनरी हमारा जैसे नेम, एज, जेंडर, राइट. So the keys of inner dictionary are exactly the
same, right? We can create a data frame by passing this dictionary as pd dot data frame, or people is the name of dictionary. We can pass this parameter. So you can see मार्केटिंग इन सेल, आउटर जो डिक्शनरी है आपकी सेल्स और मार्केटिंग, वो जो है आपके कॉलम क्रिएट हो जाएंगे, कॉलम बन जाएंगे, राइट। और जो इनर डिक्शनरी है वो आपकी रोज बन जाएंगी, और जो इनर की हैं वो आपकी के जो है इंडेक्स बन जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। You can take another example. Create and display a data frame from a 2D dictionary sales which stores the quarter-wise sales as inner dictionary for 2 years as shown. सेल्स हमारी डिक्शनरी का नाम है, YR1 YR2 ये जो है हमारे आउटर कीज हो गई, Q1 Q2 Q3 Q4 these are the inner keys, 34,500 56,000 etc. these are the keys of the inner values of the inner keys, right? So to create a data frame, import pandas as pd, सेल्स इक्वल टू, पहले तो आप इसको लोड करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे, सेल्स को एज इट इज राइट करेंगे। आफ्टर दैट df सेल, दिस इज द ऑब्जेक्ट नेम, जैसे आपने पहले df1 वेरिएबल लिया था और एक और वेरिएबल लिया था dtf1 एटसेट्रा, तो आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। df sales इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम and pass a parameter like sales because sales is the name of our dictionary. Print df sales. So you can see the output yr1 yr2, these are the your outer keys, they will become the column. The inner keys, they will become the rows, इनकी जो वैल्यूज है वो रोज में आ जाएगी। एंड यू कैन सी द आउटपुट विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड वी कैन क्रिएट ए 2D डिक्शनरी। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, क्रिएटिंग ए डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज ऑब्लिक लिस्ट। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत सारी डिक्शनरीज पास कर देते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारी डिक्शनरीज हैं, पहले तो आपने एक एक डिक्शनरी पास की थी, उसके अंदर डिक्शनरी पास की थी, अब यहाँ पर देखिए हम बहुत सारी डिक्शनरी एक साथ पास करेंगे, तो उस टाइम पे हम अपना डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे। इफ़ यू पास ए 2D लिस्ट हैविंग डिक्शनरी एज द एलिमेंट्स और लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज टू द डाटा फ्रेम, it will create a data frame object such that the inner dictionary key will become the columns and the inner dictionary's values will make the rows. For example, you can see import pandas as pd, topper a equal to, this is the first dictionary, topper a equal to roll number, name, marks, okay. सिमिलरली टॉपर बी, टॉपर सी, टॉपर डी, ठीक है। ये चार जो है हमने डिक्शनरी क्रिएट कर ली हैं। अब इन चारों को एक वेरिएबल के अंदर पास कर देंगे, टॉपर्स इक्वल टू टॉपर ए कॉमा टॉपर बी। तो एक पूरी जो लिस्ट क्रिएट कर दी हमने डिक्शनरीज की, ठीक है। यू कैन सी दिस इज ए लिस्ट ऑफ dictionaries, topper A, topper B, topper C and topper D. So डाटा फ्रेम बनाने के लिए top df इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम और टॉपर्स उसको पास कर दिया, राइट, क्योंकि टॉपर्स के अंदर हमारी ऑल डिक्शनरीज हैं। टॉप df को हम प्रिंट करेंगे। सो यू कैन सी रोल नंबर, नेम, मार्क्स, यानी कि द की ऑफ इनर डिक्शनरी have made the columns of the data frame, and you can see the value of inner dictionaries have made the rows of the
डाटा फ्रेम। हमने यहाँ पर कोई इंडेक्स की वैल्यू पास नहीं की, तो 0 1 2 3 डिफ़ॉल्ट जो है वो आपको इसके अंदर जनरेट हो जाएंगे। ओके, when a data frame is created with a list of dictionaries, the columns are created from the keys of dictionary elements and default index are assigned to rows 0 1 2 3, राइट। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर हम अपना इंडेक्स खुद का पास करें तो नो प्रॉब्लम, सेम कमांड टॉप डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट डाटा फ्रेम टॉपर्स, ये आपका वैल्यू पास हो जाएगी इससे, कॉमा इंडेक्स इक्वल टू सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी एंड सेक्शन डी। तो यू कैन सी इन द आउटपुट, अब जो आपका पहले 0 1 2 3 इंडेक्स था, नाउ इट विल चेंज इन सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। सो इस तरह से हम इसका डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, अपना इंडेक्स खुद का पास कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। Write a program to create a data frame from a list containing dictionaries of the sales performance of 4 zonal offices. Zones should be the row labels. Import pandas as PD. Zone A, Zone B, Zone C, Zone D। वही उसी तरह से जैसे डिक्शनरी दी थी हमने, आपको पता है कि जो इनर डिक्शनरी है वो की जो की है वो आपके कॉलम बन जाएंगे और उनकी वैल्यू जो है वो रो में कन्वर्ट हो जाएंगी। ओके, टारगेट 56,000, सेल्स 58,000, सिमिलरली सेम वैल्यूज आर गिवन इन अदर डिक्शनरीज आल्सो। सो अब इन चारों डिक्शनरीज को हम क्या करेंगे, एक लिस्ट में एंटर कर देंगे। तो लिस्ट का नाम लिया हमने सेल्स इक्वल टू जॉन ए, जॉन बी, जॉन सी एंड जॉन डी। ओके, now sales df, this line will create your data frame। तो सेल df इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम सेल्स, सबसे पहले आप सेल्स पास करेंगे क्योंकि यहाँ से वह वैल्यू पिकअप करेगा। ओके, कॉमा इंडेक्स इक्वल टू, अपने इंडेक्स जो है अपनी तरफ से जोन ए बी सी डी ये जो है पास कर दिया, राइट। और नाउ विल प्रिंट द सेल df, दिस इज द वेरिएबल वेयर वी आर स्टोरिंग अवर डाटा फ्रेम। सो यू कैन सी these are the inner keys, target and sales, these are the inner keys, they will become the columns। okay, the inner values will become the rows, inner value 56,000, 70, 75, 60,000 and you have explicitly passed your index value, so these are the index value that are displaying with your data frame। okay, okay, now let's take an third things, creating a data frame object from a 2D ND array। अब आपको डिक्शनरी नहीं पास करनी बल्कि ND array के हेल्प से आपको डाटा फ्रेम क्रिएट करना है। सो वी कैन आल्सो पास ए 2D numpy array, okay, to create a data frame object। let's see, suppose nrr1 इक्वल टू np डॉट एरे। आपको पता है जब भी एरे पास करना हो तो उसको करने के लिए आपको np डॉट एरे लिखना है, राइट। np डॉट एरे सपोज 1 2 3 4 5 6 कॉमा np डॉट इंट 32। वो कहता है कि जो एरे की जो वैल्यू है उसकी जो डाटा टाइप है वो इंट 32 टाइप होनी चाहिए, राइट। और nrr डॉट शेप करेंगे तो हमें ये बताएगा कि वो कितने बाई कितने का एरे है। आपको पता है कि इसमें 2 डायमेंशन होती हैं, फर्स्ट डायमेंशन पे आपकी 2 वैल्यू हैं और सेकंड डायमेंशन के ऊपर आपकी 3 वैल्यूज हैं, तो 2 बाई 3 की शेप हो गई इसकी। ओके, सो दिस इज़ द लाइन वेयर वी आर क्रिएटिंग आवर डाटा फ्रेम। तो DTF1 इक्वल टू PD डॉट डाटा फ्रेम और उसके अंदर एरे की वैल्यू पास कर दिया, एरे वेरिएबल पास कर दिया। सो यू कैन सी DTF1 को जब हम प्रिंट करेंगे, so you can see columns are not here, only ND array values are here। तो वैल्यूज जो है आपकी वो आपकी वैल्यूज में आ गई, इंडेक्स भी बाय डिफ़ॉल्ट आएगा एंड कॉलम ऑल्सो आर कमिंग द बाय डिफ़ॉल्ट। as you can see in the above code example that the Python are created indexes or x is equal to 0 from the first dimension, यानी कि फर्स्ट डायमेंशन से आपको इंडेक्स मिला है of the past ND array and columns
यानी कि x is 1 from the second dimension of the passed ND array. As no keys are there, hence default names are given to the index and columns. We can, however, specify our own column names or index by giving the columns argument and the index argument, you know. So you can see dtf2 equal to pd dot data frame, nrr1 वेरिएबल था अपने पास, उसको पास कर दिया, कॉमा कॉलम्स इक्वल टू 1 2 3. आप चाहते हैं कि जहाँ कॉलम 0 1 2 3 जो बाय डिफ़ॉल्ट आया था उसकी जगह 1 2 3 लिखा हुआ जाए. सो यू कैन सी उसकी जगह क्या आ जाएगा 1 2 3. यू कैन सी कि पहले आप 0 1 2 बाय डिफ़ॉल्ट आया था, नाउ 1 2 3 बिकॉज इट इज़ एक्सप्लिसिटली पास्ड, राइट. इसी तरह से आप इंडेक्स भी पास करेंगे. सपोज वी कैन टेक अनदर कमांड dtf3 इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम nrr2, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमने वो nrr2 वेरिएबल के अंदर पास कर दी थी सारी की सारी. सो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कॉमा कॉलम्स इक्वल टू फर्स्ट सेकंड थर्ड. अब 1 2 3 की बजाय हमने क्या रख दिया यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड इंडेक्स इक्वल टू abc. सो यू कैन सी now index value are coming in the abc and your columns name become the first second and third. Rest of the values are same because these values are passed 11.5 21.2 whatever. Okay, so all values are passed. So in this way we can create our data frame using the 2D ND array. Let's take another example. What will be the output of the following code? The codes are import pandas as pd, import numpy as np, array1 यानी कि arr1 equal to np dot array 11 12 13 14 15 16 कॉमा np dot int 32, यानी कि ये बताया है कि डाटा टाइप जो है इसकी वो int 32 टाइप रहेगी. सो वी हैव टू क्रिएट द डाटा फ्रेम. We have taken a variable dft2 or any variable equal to pd dot data frame and pass the parameter arr1, print df2. So you can see the output, okay, because only these values are passed without any column name, without any index. So you can pass your own index and column names also. Let's see another example. Write a program to create a data frame from the 2D array as shown below. These are the values of array. You can see this is a 3 by 3 array. फर्स्ट डायमेंशन पे आपकी 3 वैल्यूज हैं, सेकंड डायमेंशन पे आपकी 3 वैल्यू, यानी कि 3 रोज हैं 3 कॉलम हैं, तो इट्स ए 3 by 3. सो import pandas as pd, import numpy as np, array2 equal to np dot array. So we have to create the array, pass these values in the array whatever given in the list. Okay, you can see here we will pass all these values. After that we will take a variable dtf3 equal to pd dot data frame array2. Array2 is passed and we will print the variable dtf3. Okay, you can see the result. You can see all values are coming, and the columns name that are not given, it is taken automatically by the system, generated the index also automatically. So 1 2 3 0 1 2. Okay, so in this way with the help of passing numpy array we can create our data frame. Okay, so let's try to understand our fourth method, creating a data frame object from a 2D dictionary with the values as series object. We can also create a data frame object by using multiple series object in a 2D dictionary. Okay, we can have the values part as series object, and then
we can pass this dictionary as argument to create a data frame object. Suppose we have the following series object: staff equal to pd dot series 20 36 44, salary is equal to pd dot series 16,000, 1,66,000, 2,46,000, or whatever any value. So these are the two series object, staff and salaries, and a dictionary that store these series object. अब ये दोनों सीरीज ऑब्जेक्ट हमें एक डिक्शनरी में पास करने हैं. सो द नेम ऑफ द डिक्शनरी सपोज स्कूल इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है कि डिक्शनरी जो है वो कर्ली ब्रेस में ली जाती है, पीपल कॉलन स्टाफ, अमाउंट कॉलन सैलरी. तो पीपल नाम का जो कॉलम आएगा उसके साथ स्टाफ की वैल्यू आएगी, और अमाउंट नाम का जो कॉलम आएगा उसके साथ सैलरीज की वैल्यू आएगी. ओके, वी कैन क्रिएट ए डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द 2D डिक्शनरी बाय पासिंग इट्स नेम एज आर्ग्यूमेंट. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो स्कूल जो डिक्शनरी बनाई है आपने वो पास करनी है. सो DTF4 इक्वल टू PD डॉट डाटा फ्रेम, और ब्रैकेट में पास कर दिया आपने स्कूल, राइट. सो नाउ द डाटा फ्रेम DTF4 created, and the output will be look like as I told you, amount people. आपको पता है कि people के साथ स्टाफ की वैल्यू आएगी और अमाउंट के साथ सैलरीज की वैल्यू आएगी, राइट. अब आप देखिए डिक्शनरी में आपने पहले पीपल और स्टाफ दिया था, बट वो बाद में है, तो ये अपने आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होके आता है, राइट. वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद अनदर एग्जांपल. कंसीडर टू सीरीज ऑब्जेक्ट ऑफ स्टाफ एंड सैलरीज दैट स्टोर्स द नंबर ऑफ पीपल इन द वेरियस ऑफिसेज, branches and salaries distributed in these branches respectively. Okay, write a program to create another series object that store average salary per branch, and then create a data frame object from these series object. Okay, so इसको करने के लिए we have to import the pandas as pd, numpy as np. तो फर्स्ट जो हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट है दैट इज स्टाफ इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, उसके अंदर आपने कोई 3 वैल्यू पास कर दी, सैलरीज के अंदर भी कोई भी 3 वैल्यू आपने पास कर दी, राइट. अब आपको एवरेज सैलरी निकालनी है, तो वी हैव टेकन ए वेरिएबल एवीजी इक्वल टू सैलरीज और डिवाइडेड बाई स्टाफ. सो इट विल क्रिएट एवरेज सैलरी ऑब्जेक्ट. ओके, ORG हमने एक और वेरिएबल लिया ORG, दिस इज अ डिक्शनरी. पीपल आपका कॉलम नेम रहेगा, राइट, और उसके साथ स्टाफ की वैल्यू आएगी. अमाउंट आपका कॉलम रहेगा, उसके साथ सैलरीज की कॉलम वैल्यू आएगी, और एवरेज तीसरा कॉलम रहेगा आपका, उसके साथ जो AVG जो आपने कैलकुलेट की है एवरेज वो वैल्यू आएगी. और अब हम डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को ORG पास कर देंगे जिस वेरिएबल के अंदर हमने अपनी डिक्शनरी पास की है, राइट. सो प्रिंट करेंगे हम इसको. यू कैन सी द आउटपुट एज आई टोल्ड यू, अमाउंट, एवरेज, पीपल, इट विल ऑटोमेटिकली अरेंज इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ओके, इंडेक्स हमने कोई पास नहीं किया है, तो इंडेक्स विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली. सो इन दिस वे वी कैन क्रिएट our data frame with the help of 2D dictionary with the values as a series object. Okay, now let's take our one more method, creating a data frame object from another data frame object. यानी कि एक डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को यूज करते दूसरे डाटा फ्रेम को. We can pass an existing data frame object to the data frame, and it will create another data frame object having similar data. Consider the code. Suppose given a data from object DTF1, this is a data frame that is suppose already created 0 1 2 3 4 5 6. Okay, we can create an identical data frame by passing its name DTF1 टू द डाटा फ्रेम. अब हम एक ऐसा ही डाटा फ्रेम और क्रिएट कर लेंगे. सो
df_new उसका नाम रख दिया हमने, df_new इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम dtf1 उसके अंदर पास कर दिया, तो उससे हमारा एक डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा सेम टाइप का. ओके, एंड नोट दैट देर आर सम अदर मेथड्स आल्सो, but for creating data frame, these are the methods that are in your syllabus. After that we can print them. You know कि to display or print a data frame we need a command, that is a print command. Okay, apart from this there are some attributes of the data frame. To know about the index, columns, axis, d type, size, shape, values, empty, indement t for the transpose. Okay, so these are some attributes that can be used for the different purpose. Suppose index, to the index row label of the data frame. कॉलम्स के लिए कौन कौन से कॉलम्स हैं, आपको कॉलम्स देखने हैं तो कॉलम्स डिस्प्ले हो जाएंगे. द कॉलम्स लेवल ऑफ द डाटा फ्रेम. एक्सिस, आप एक्स एक्सिस पे आपको पता है कि 0 एक्सिस और एक्सिस 1 के ऊपर काम करते हैं, तो कौन से एक्सिस के ऊपर काम करना है. Similarly, d type, size, shape and values. Okay, so these are the different data frames attributes we can use. Suppose आपको इंडेक्स देखना है तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट इंडेक्स, कॉलम देखने हैं तो डॉट कॉलम्स, एक्सिस देखने हैं तो डॉट एक्सिस. You can know about the d types. Okay, so these are the different methods to use the data frame objects. Apart from this you can use the count method also, right, to know ki how many number of records are there. To count or axis also you can count the ki how many number of records on the different axes. So in such a way you can use these data frame objects. Thank you.